Hello friends, if you are preparing for Code 55 Labor Welfare and HRM, Code 08 Commerce, Code 17 Management, then get in touch with Human Peritus. Human Peritus is having vast past experience of more than 14 to 15 years in teaching these subjects. आज हम इस वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 के चैप्टर 5 को कवर करने वाले हैं। चैप्टर 5 है वेलफेयर एंड हेल्थ प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो इसी के बारे में बात करेंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली इस चैप्टर में सेक्शन 16 से सेक्शन 21 तक कवर किए गए हैं। सो हियर under this chapter the responsibility to provide basic amenities to contract labor lies with contractor। तो हमें ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्टर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। even if he is engaging his contract labor with the in the establishment of the principal employer, the responsibility to provide basic amenities lies with the contractor। So section 16 to section 19 basic amenities है। Section 16 specifically talks about provision of canteen, and if any industrial establishment engages 100 or more contract labor employed, the provision of canteen should be there and the responsibility is with contractor। ठीक है। And section 17 talks about provision of restrooms where halt at night is required। So where the work is of continuous nature or where the halt at night is required on the part of the contract labor, then section 17 talks about provision of restrooms by the contractor, and these canteens, these restrooms, whatsoever is the nature of other facilities, they should be properly maintained by the contractor throughout। Okay, so section 18 talks about other facilities, and in other facilities, this section talks specifically about provision of wholesome drinking water at convenient places, latrines and urinals, and washing facilities। And section 19 basically talks about first aid facilities। First aid facilities. So wherever the employment of contract labor is there, so at every establishment of the principal employer, तो अगर एक कॉन्ट्रैक्टर 7-8 प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स को अपनी कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई कर रहा है, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर टू प्रोवाइड फर्स्ट एड बॉक्स एट एवरी प्लेस ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो हर एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के प्लेस पर ये देखना कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी है कि वहां पर ये सब फैसिलिटीज हैं या नहीं है। नहीं है तो कॉन्ट्रैक्टर को ही प्रोवाइड करनी है। ठीक है। तो सेक्शन 16 सेक्शन 19 तक ये बात होती है। एक चीज और जो सेक्शन 16 कैंटीन से रिलेटेड ही बताया गया है कि यहाँ पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास बेसिकली पावर है कि वो कैंटीन से रिलेटेड रूल्स को इशू कर सकती है, और उन रूल्स में बेसिकली क्या बता सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ द कैंटीन, कि बाय विच डेट द कैंटीन शुड बी प्रोवाइडेड एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ कैंटीन्स कैन बी प्रोवाइडेड। तो एक से ज्यादा भी कैंटीन हो सकती है। ठीक है। और कैंटीन से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन है, अकोमोडेशन है, उसका फर्नीचर है, कोई भी इक्विपमेंट है, उससे रिलेटेड भी रूल्स अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है। इवन फूड स्टफ टू बी सर्व्ड along with the charges of the food stuff can also be notified by the appropriate government। तो ये पावर किसके पास है? appropriate government के पास है। ठीक है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज जो इस एक्ट में बताई गई है बाय वे ऑफ सेक्शन 20 कि what if the contractor fails to provide these amenities to the contract labor which have been specifically mentioned under section 16 to section 19, then in that case it's the responsibility of the principal employer। उस केस में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ये सारी फैसिलिटीज कॉन्ट्रैक्ट लेबर को प्रोवाइड करे। अब झगड़ा इस बात का हो सकता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, then if principal employer is forced to provide such kind of facilities to the contract labor in the case of failure of the contractor, then
प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, क्या एक्शन ले सकता है कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट? ही इज बेसिकली एंटाइटल्ड टू रिकवर हिज मनी फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर बाय टू वेज। और वो दो वेज क्या है? ईदर एज डेट, ही कैन रिकवर द मनी, तो डेट की तरह वो उसको रिकवर कर सकता है, या ही कैन डिडक्ट द मनी फ्रॉम एनी मनी विच इज ड्यू बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो ऑलरेडी अगर कॉन्ट्रैक्टर को कोई पैसा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने देना है तो उसमें से भी वो डिडक्शन की तरह इस पैसे को रिकवर कर सकता है। ठीक है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की है, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की है। सेकेंडरी मीन्स इफ द कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू प्रोवाइड एनी सच फैसिलिटी देन इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड फॉर सच फैसिलिटी एंड ही कैन रिकवर सच मनी फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर देयर आफ्टर। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन 21। सेक्शन 21 में भी बहुत अच्छी बातें लिखी गई है। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी of the contractor again for the timely payment of wages। अगेन यहाँ पर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस किसकी है? कॉन्ट्रैक्टर की है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 21। ठीक है, सो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की। और ये भी बोला गया है कि दोनों की ड्यूटी है, इज द ड्यूटी ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एज वेल एज दैट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू अपॉइंट ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव in whose presence the wages will be disbursed by the contractor to the contract labor, and at the same time it is the responsibility of the contractor that he disburses all the wages to the contract labor in the presence of authorized representative of the principal employer only। ठीक है, और वो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को चुपचाप खड़े नहीं रहना, उसको क्या करना है? उसको बेसिकली सर्टिफाई करना है यस दैट ऑल द वेजेस हैव बीन पे टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ओके। अच्छा, व्हाट इफ अगर कॉन्ट्रैक्टर, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर ने किसी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को पेमेंट करनी थी, कुछ 1000 या 2000 रुपीज देने थे, या तो उसने वो 2000 रुपीज दिए नहीं कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लेबर को, या फिर 2000 के 1800 पकड़ा दिए कि मेरे अकॉर्डिंग तो 1800 बनते हैं। तो ये जो शॉर्ट पेमेंट है 200 रुपीज की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? अगेन कॉन्ट्रैक्ट लेबर कैन गो टू प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड क्लेम हिज मनी। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वो जो शॉर्ट पेमेंट हुई है या जो नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उसको पेमेंट करेगा। क्यों? बिकॉज कॉन्ट्रैक्टर हैज फेल्ड टू अबाइड बाय हिज ड्यूटी ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस, और या उसने शॉर्ट पेमेंट करी है। तो कोई भी शॉर्ट पेमेंट होगी या नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस रहेगी तो उस केस में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक गुड द लॉस। ठीक है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई प्रिंसिपल एम्प्लॉयर करेगा। सिंपल। अब यहां पर भी सेम चीज बोली गई है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉय के पास ये राइट है कि ईदर बाय वे ऑफ डेट और बाय मेकिंग डिडक्शन फ्रॉम एनी पेमेंट विच इज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्टर बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, तो वहां से वो डिडक्शन कर सकता है बाय रिकवरिंग हिज फॉर रिकवरी ऑफ हिज मनी। ठीक है, तो यहां पर भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अपने पैसे की रिकवरी कॉन्ट्रैक्टर से कर सकता है। तो दोनों ही केसेस में कर सकता है, लेकिन यस प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की है एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बोथ द केसेस इज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो ये चीजें हमें सेक्शन 16 to 21 में देखने को मिलती है।